teachers, all staff members, students, and all our esteemed parents. As we proceed with today's celebration, let me introduce us. Myself Anupam and I am anchor of today's event celebration alongside my co-anchor Rasmi. On this glorious occasion of Republic Day, it is with great pride and joy that we are gathered here to celebrate the spirit of unity, integrity, democratic and republic values that our nation holds. Now, I request all the participants of March Fast to take their positions and get ready to march forward, showcasing the strength of unity of our school. Now, the moment we have all been waiting for, when we pay tribute to the symbol of our freedom and unity. I kindly request our Honorable Director Ma'am, Deputy Director Sir and Principal Sir to step forward and honor us by hosting the flag as we stand together in reverence of the spirit of our great nation. Parade, salute the flag! जी सर Parade, salute the flag! जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस Parade, ready for flag! Start! Parade, stand! अच्छा ये रख देना चलने दो। The speeches
Now, to continue with the program, I would like to invite Shaheen Parveen, who will give us English speech. Honorable Director Ma'am, respected Principal Sir, teachers, esteemed guests, and all my dear loving brother and sister, I am Shaheen standing here for delivering an English speech in front of you all. First of all, I would like to thank my school management to give me this golden opportunity to say some words about Republic Day. Today, as we gather here to celebrate the 76th Republic Day of India, I am filled with immense pride and gratitude for our nation to its rich history and remarkable journey we have traversed. Republic Day is not just a date of the calendar. It is a day when India got adopted their constitution in 1950, a document that laid the foundation for democratic, secular and sovereign nation we are today. This was a day when India became truly republic from the people ultimate. India achieved many remarkable milestones in various fields, be it technology, science, education, in the field of sports and games. We are the generation of young dreamers and relentless doers. But our journey does not end here. We need to play a crucial role for our society and for our nation to shaping our India's better. As a student, let us dedicate us, keep learning and growing so we can contribute ourselves meaningfully for our nation. Let us also remember the brave soldiers of our armed force who selflessly sacrifice their personality in the borders and depend us. So it's our responsibility to make a better citizen to serve our nation. On the Republic Day, let us pledge to keep the spirit of unity, diversity, equality alive. Let us strive for an Indians where dreamers are fulfilled, opportunity abundant, and every citizen feel valued. Let us also remember the brave freedom fighters who selflessly sacrificed their life for us. They include Mahatma Gandhi, the father of the nation, Lala Lajpat Rai, Rani Lakshmi Bai, Bhagat Singh, others countless dreamers who sacrificed their life to freedom. And last, I want to conclude my speech of the words of Dr. Bhim Rai Ambedkar, the architect of our constitution. Let us be a good citizen and to make our constitution shiner and brighter. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Sahin. Now I would like to call Divya Kumari for a Hindi speech. ये जोश कभी कम नहीं होगा, वीरों के बलिदानों से आया है, कितनों ने लहू बहाया है, तब जाके तिरंगा पाया है। आदरणीय उपस्थित निर्देशिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय अभिभावक एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुप्रभात। मैं दिव्या कुमारी आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाषण देने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यह दिन भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। स्वतंत्र दिवस का यह अवसर हमें याद दिलाता है कि हम सभी का कर्तव्य हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2025 में देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वो दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तारीख थी 26 जनवरी। तत्र भवान निर्देशिका महोदय, पूजनीय गुरुजना, सस्नेह सुब्रह्मचारिगणान् आगन्तुकजनाः च, अहम् अनुष्का अस्मिन् गणतन्त्रदिवस समारोहे समधुरं वाण्यकेन भवान् सर्वान् अभिवादनेन सह अभिनन्दनं करोमि। अद्य माम् अपार हर्षेण सह न्यूटन पब्लिक विद्यालयस्य प्राङ्गणे उपस्थित्वा गणतन्त्रदिवसस्य अवसरे वदस्यां सौभाग्यं प्राप्तवान्। गणतन्त्रदिवसः भारतस्य राष्ट्रीयपर्वम् एवं स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य स्मरणं दाययति। अस्माकं देशः 100 वर्षे
आङ्ग्लानां दासस्य पश्चात् देशस्य महापुरुषे 1947 तमे स्वतन्त्र जातं। कोऽपि कार्यं कर्तुं ज्ञानं नियमः सन्मार्गः आदर्शः च भवितुं विशिष्टं भवन्ति, तथापि कार्यव्यवस्था सुफलं भवति। एतेव अस्माकं देशः कुशलः न्यायपूर्णं समृद्धः च निर्माणयितुं संविधानस्य निर्माणं कृतवान्। एतत् स्वाधीनतास्य पश्चात् 26 जनवरी 1950 तमे अस्माकं देशं गणतन्त्र घोषितवान्। तस्मिन् काले प्रतिवर्ष झण्डोत्तोलनं कृत्वा गणतन्त्रदिवसं मन्यन्ते। अस्मिन् दिवसस्य पूर्व सायङ्काले राष्ट्रपतिमहोदयेन देशानां सन्देशं दास्यति। अस्मिन् दिवसे सर्वकारस्य गैरसर्वकारस्य सर्वेषु प्रतिष्ठानेषु झण्डोत्तोलनं परेडा विविधानि सांस्कृतिककार्यक्रमाणि आयोज्यन्ते। अन्ततः पूर्णा सन्तु मनोरथा, शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्राणाम् उदयस्तवः। धन्यवाद। जयतु हिंदम जयतु। I would like to call Vania Riaz for Urdu speech. हम अपने जान के दुश्मनों को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाबे सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ। इसके क़िबल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। अगरचे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा मुल्क आज़ाद जमहूरियत बना। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना आज़ाद व जवाहरलाल नेहरू जैसे अजीम रहनुमाओं ने बिला नज़्ह व मुल्क आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद तफाक से अंग्रेज़ों से टक्कर लिया और उन्हें हमारा मुल्क हिंदुस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर किया। हजरात, आज का यह दिन हमें अपने बुज़ुर्गों और अजीम रहनुमाओं की कुर्बानी और उनके मकासद का याद दिलाता है। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी, नकल व हमल, इत्तलाती और मौसिलाती टेक्नोलॉजी शोबों में हमारे मुल्क ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे सामने बेरोज़गारी, पशामदगी और नाखवानदगी अफरीद खड़ा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस दौर के तकाज़ों को देखें और मुल्क की तरक्की और कामरानी की सही रास्तों का तयीन करें। हमारा मुल्क सूफ़ी सुन्नतों और दरवेज़ों का मुल्क है, जिन्होंने हमें अमन, सुकून और भाईचारे का पैगाम दिया है। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी अपनी सतह और अपनी अपनी बसात के मुताबिक उन उसूलों को अपनाएं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अता किया है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यह मुल्क हर मज़हब, हर खती का एक एहसास चश्मा है, जिसके सोते इंसानियत की बुनियाद पर फूटते हैं और उन्हें सदियों से शेर व शुक्र होकर हिंदुस्तान की गंगा जमने तहजीब को सैराब करते हैं। हमें चाहिए कि हम निशानियत, अमन व आस्ती, आपसी भाईचारे के प्यार और मोहब्बत के इस पैगाम को घर घर आम करें। किसी शायर ने कहा है, आओ मिलजुल के चलो पहले यही काम करें, सब इखलास व मोहब्बत पर चलन करें। इसी अंदाज में हर दल में उतरना होगा। काम भारत के लिए हमको यह करना होगा, अपने भारत को बुलंदी की तरफ ले जाना है और बहुत दूर तरक्की के लिए जाना है। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you very much, girls. At last, this grand occasion is going to end. I am here to thank, first of all, Director Ma'am, our Deputy Director Sir, Samar Singh Sir, and Verma Sir, all the teachers, the Tini Tots, Nursery and LKG, and all the students standing here, the non-teaching staffs, and especially the guests, our parents present here. Thank you very much for your attention, for your kind presentation here. Our program is going to end from here. Thank you once again.
थोड़ा ऊपर से अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गर्ल्स, गैलीलियो हाउस गर्ल्स, गैलीलियो हाउस गर्ल्स क्लास में चले जाइए। में चले जाएं। टीचर्स क्लास में चले जाएं। नोबेल हाउस गर्ल्स भी जाएंगी क्लास में। नोबेल हाउस गर्ल्स आप भी क्लास में जाइए। ऊपर से ले लें सारी को आ गया। सर, अनिल सर आ जाइए। मौलवी सर, क्लास 1 to 4 लेडी स्टाफ चले जाएं बच्चों के साथ पढ़ने। मेरे क्लास में भी सब इसमें कपड़ा लिया सबको दे फिर इसमें से उसमें दे खिलौने मेरे को मेरा
जरूरत पड़े मेरा आएगा। Hamza.